Okay, so over here, I'm sure you would have solved some over here these two questions. So let's see how we are going to solve it. So for calculation purpose, I was about to change the value, but it's okay. Okay. So over here, this is now you have to focus on what is kinetic energy given. So kinetic energy is given 10⁵ joule per mole. है ना? Per mole it is given. So you have to convert into electron volt. So that is, let's say I will write 1.68 into 10⁵ joule per mole will be equals to 168 kilojoule per mole. Now I can write what is kinetic energy in electron volt. So this is going to be 168 divided by 96. So that is, let's say you can solve with, this is going to be 84 divided by 48. So this is, you can cut with 4. So this is 21 and this is 12. You will cut 3 times. So 7 by 4 or 1.75 electron. So that is kinetic energy. What is energy, incident energy? So incident energy is 12,400 divided by 300 nanometer, matlab 3000 angstrom. And this is, for this purpose, we can write 2420 because this is going to cut easily. So this is 4.14 electron volt. Now this is incident energy. So you can say 4.14 is equals to, that is threshold energy. You would have to calculate h nu naught plus this is 1.75. So what is h nu naught? So h nu naught is going to be 4.14 minus 1.75. So that value is going to be 1.414 minus 1.75. So this value is going to be 2.39 electron. So this is your work function, 2.39. Now you have to calculate frequency as well as wavelength. So first thing is, no, so you have to calculate minimum energy or minimum energy. So minimum energy is this, and maximum wavelength you have to calculate. So we will apply. So this is answer first. Another B part is E is equals to hc by lambda, and you know the energy, so you can calculate lambda. So lambda is going to be, this is the formula all the time. Energy डालो lambda मिलेगा, lambda डालो energy मिलेगी. So lambda equals to 12,420 divided by 239. Okay, so that will be your lambda in angstrom. So you can take 2.4 here approximately. So 2.4 से 12,000 होता है 5,000, right? And this is 420, 2.4 से हो जाएगा कितना, 110 और approximately 24 है ना, 110. So that is going to be 180 बच गया. फिर approximately we can say this is value is going to be approximately 5,200 angstrom, approximately 100 something आएगा, 180, 70, 80 something. So this is going to be your answer. Okay, so somebody is saying this is coming around 5175, so you can solve. Okay, that is ठीक है. तो क्या किया हमने, kinetic energy we have converted into kilojoule because here it is given joule per mole. So kilojoule per mole, then we have converted to electron volt, applied the formula, get the answer. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इसके कुछ एग्जांपल. आई होप कि ये बातें सब समझ में आ गई होंगी.
Now kinetic energy is given over here, so it cannot be zero. ठीक है. Yes, you can find threshold energy with this formula ना, यही तो है threshold energy. चलो, next is Bohr model. Bohr was like first person who has taken Rutherford result and tried to explain Rutherford result. ठीक है. Then he said everything correct कि Rutherford ने जो भी बोला वो इन्होंने support किया. इन्होंने कहा हाँ, सारा का सारा mass nucleus पे ही रहेगा, है ना. Electron, protons are present at the nucleus at the center of atom, that is nucleus. Electrons are going to revolve around nucleus like planetary model. ठीक है. What he also said that is the one thing that how electrons are stable, है ना. So he said okay, there are going to be stationary orbit, है ना. जिन जिन जगह पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है उसको बोला इन्होंने that is orbit, है ना. न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रोटेट कर रहा है. Then he said these are stationary orbit. These paths are called orbits. And he said that there are going to be a, let's say, there are going to be constant energy orbits. Okay, these are. Here, electron is not going to lose its energy in this orbits. Electron is not going to lose its energy like this. Okay. कुछ बातें हैं, पहले लिख लेते हैं इसके, है ना, कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं. First is, let's say, first you can write that all the protons or all the positive charge is present at the center of atom, comma, is called nucleus. All the positive charge, so all the positive charge present at the center of nucleus, that is center of atom, ठीक है. Second point, he said that the electrons are rotating around nucleus like planets rotate around sun. So this is like kind of a solar system. Now, when the electrons are moving, okay, when the electrons are moving around the nucleus, there is an electric force. There is an electric force which is going to operate, and this electric force is exactly equals to centrifugal force. F electric. So, electric force between nucleus and electron provide
centrifugal force and hence responsible for circular motion. So this part you are going to see in circular motion. थोड़ा सा आपको physics में और आएगा, तब और अच्छी तरह से पता चलेगा. Right now you just understand what is circular force is. So F electric हमें पता है. What is F electric? That is F electric is, we can say K Q1 Q2 by R square. So that is K. What is the Q1? Charge of electron is E. What is Q2? Charge of nucleus, that is ZE divided by R square. So that is KZE square by R square. And what is FC? That is centrifugal force. That is MB square by R. Okay. So hence KZE square by R square is equals to MB square by R. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट है. तो या तो मैं बोल दूं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, या मैं बोल दूं ये इसके बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. होता क्या है, जब भी हम किसी रस्सी को, मतलब कोई भी जो भी किसी रस्सी से कुछ मतलब कोई वॉल को बांध के अगर इसको ऐसे घुमाएंगे, तो बिकॉज दिस इज कनेक्टेड, यहाँ पे क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर. एंड इफ दिस है ना, ये रस्सी यहाँ से टूट जाती है मान लो, तो क्या होता है, ये क्या बाहर की तरफ गिरता है, राइट. जैसे सर्कुलर मोशन ये कर रहा हो, तो अगर मान लो ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, ऐसा, तो क्या होगा, जैसे ही रस्सी गिरेगी तो ये ऐसे जाएगा, सॉरी ये नहीं ऐसे, ये रस्सी जैसे ही टूटेगी तो ये ऐसे जाएगा. इसका मतलब क्या है, इस पे अभी भी एक फोर्स लग रहा है. ये वाला फोर्स तो बंद हो गया क्योंकि रस्सी टूट गई, लेकिन अभी भी ये फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Equal and opposite force which is going to operate on one particle or ball or something like that, which is doing circular motion. Yes, m is the mass of electron. Okay, we can write here, not here, we can write here. M is mass of electron, v is velocity of electron, r is, you know, that is radius of orbit. Now this is one, let's say, equation. We can remember this part. So from here we can write, we can, let's say, remove r, and we can try to find what is the value of kya, ek minute, just one second. Yes, obviously r is same. R is distance between nucleus and electron, that is what, radius. Bol. So let's see, we'll move on to another part, that is next we can, let's say, over here we can solve this part, right. We can write r value, अगर हमें v value पता है तो इसको अभी आएंगे इस पे थोड़ी देर में, ठीक है. नेक्स्ट पोस्टुलेट, तो फोर्थ, this is important postulate. Now what Rutherford could not explain, that is stability of electron or stability of stability of atom, है ना. So he said कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं हो सकता है. इलेक्ट्रॉन कैन ओनली प्रेजेंट इन सर्टेन, लेट्स से सर्टेन ऑर्बिट्स, ठीक है, वेयर इट इज नॉट गोइंग टू लूज इट्स एनर्जी. सो दिस इज, इलेक्ट्रॉन कैन
revolve only in those orbit where angular momentum MVR is integral multiple of h by 2 pi. Hence, MVR equals to NH by 2 pi. This h by 2 pi is also called as h cut. ठीक है, ये उसको क्या बोलते हैं? h cut. ठीक है. Okay, again we will understand this part. some लोग मुझसे पूछ रहे हैं ये क्या है. हमें ये बात बताए, जब कोई न्यूक्लियस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं और यहाँ न्यूक्लियस पे कुछ प्रोटॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच में कैसा फोर्स होगा? k q1 q2 by r square. तो q1 क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. q2 क्या हो गया? चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज Ze. Z का मतलब कितना हुआ? कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर क्या है उसका. ठीक है, राइट. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया आपको. Where we can apply this Bohr model, है ना? Where we can apply this Bohr model. What Bohr has tried to do is he has tried to apply for uni-electronic series. Now applicable for uni-electronic species like hydrogen, helium plus ion, lithium 2 plus ion, etc. Plus ion, beryllium 3 plus ion, etc. So this Bohr model is applicable for only for uni-electronic series. Why this is applicable for uni-electronic series? I'll tell you. Wait. यहाँ पहले इतना बताओ, ये लिख लिया. तो यहाँ पे लिखना था, है ना? ये लिख लो पहले. Applicable for uni-electronic series like hydrogen, helium ion, lithium 2 plus ion, beryllium ion, like this. ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब ये लिख लो. Fourth one is like Bohr was doing some experiment and he is always stuck with the certain value, है ना? तो he don't know कि how this MVR equal to NH by 2 pi is coming, but he said okay, अगर ये है तो हमारा मतलब सारी equation is just like a secret, you can say, number or secret value which is going to solve a particular mathematics problem. Somebody don't know कि why he is doing this, but because this is solving the answer, they are saying okay, अगर यहाँ पे ये लगाओगे तो काम हो जाएगा. So Bohr that time don't know. Later on, de Broglie told
that why this NH by 2 pi is coming. So we will see that part in de Broglie's. Okay. यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं अभी बता रहे हैं, बस ये फिनिश करो यहाँ पे. ओके, दिस इज डन. राइट दिस. ठीक है, डन. सो लेट्स मूव टू दिस पार्ट that what is uni electronic species. तो ये समझ लेते हैं थोड़ा. फोर्थ पॉइंट ये है कि अभी के लिए बस इतना समझ लो कि बोर है सेड कि अगर एंगुलर मोमेंटम NH by 2 pi होगा, ही सेड कि सब जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता, है ना. सब जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि सब जगह स्टेबल नहीं है. सो इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट where angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. And he said these orbits are called stationary orbit, where electron will not lose its energy. तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इन ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो स्टेबल रहेगा. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, इन्हीं ऑर्बिट में रहेगा. राइट. मतलब मैं बोलूं कि यहाँ से जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है और ये बहुत इनफाइनाइट ऐसे करके ऑर्बिट, राइट, पॉसिबल है. लेकिन सब जगह इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उन्हीं डिस्टेंस पे होगा इलेक्ट्रॉन जिन डिस्टेंस पे, है ना, आपका इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज गोइंग टू बी NH by 2 pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. So this is what Bohr has find out. ये थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स, है ना. अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर करके उसने ये बात समझ में आ गई, लेकिन उसको रीजन नहीं पता था. So he has not given the reason, he said okay this happens. ठीक है, okay. Yes, H is everywhere is 6 point, this is Planck's constant. Yes, सब जगह H Planck's constant है. Now, so what I was saying for uni positive, है ना, तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ समझा रहा हूँ which is not in sequence, but मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया तो मैं समझा दे रहा हूँ. हुआ ये कि Bohr was want to let's say consider दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन. तो यहाँ पे तो चार्ज कितना है, Z ही है, फिक्स है, सारा का सारा एक साथ है. बट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है ना. हम जानते भी ये बात कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अलग अलग पोजीशन पे होंगे. देन दिस इज गोइंग टू बी ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. फिर हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन आर रिपेलिंग ईच अदर. these both electrons are attracted by nucleus. So whatever the force of attraction will come, that is going to be a vector sum of all these forces. So it is going to be complicated. If the position of electron will change, then the force will also vary, है ना. फिर क्या होगा, वेक्टर सम चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगल उनके बीच में चेंज हो जाएगा. So that's how Bohr don't want to complicate the thing. He just want to say about simple things. So simple thing क्या है, हमने अगर मान लो यूनि इलेक्ट्रॉनिक सीरीज ले लिया, अब क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है बस. इनके बीच में आप आसानी से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टडी कर सकते हो. दैट्स व्हाई Bohr has used this. ठीक है, यूनि इलेक्ट्रॉनिक मॉडल और यूनि इलेक्ट्रॉनिक सीरीज ही हैज टेकन. ये बात समझ में आ गई, उसमें किसी को कोई डाउट? एवरीवन शुड अपना माइक बंद करो, है ना. मेरे को तो म्यूट ऑल है, आई कैन नॉट सी. आई थिंक तपन तुम्हारा माइक ऑन है. So guys, when you are listening, you can
you can write sorry, you can unmute everyone, mute all. You would be having this option. Anyway, इसमें फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक कांसेप्ट सेइंग नहीं समझा, बहुत आसान है ना, ये कहना नहीं समझा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सोचो ना कि अगर अगर मुझे इनके बीच का इंटरेक्शन देखना है, राइट, और मेरे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ है, तो इनके बीच में क्या होगा, वेक्टर सम, एक ऐसा जा रहा है और एक ऐसा जा रहा है, इनके बीच का वेक्टर सम देना पड़ेगा, और यहाँ पे ये रिपल्शन भी हो रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यही पहुंच जाता, यही सेम इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाता, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाता, लाइक दैट। तो क्या होता, फोर्स हर बार चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ वेक्टर इज चेंजिंग। वी आर नॉट एबल टू लेट्स से राइट द सर्टेन थिंग्स। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को हटा दिया दूसरे वाले, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यूनि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज हो गई, ठीक है। तो लेट्स से now so what I said is these orbits are called stationary orbit, जहाँ पे electron will not lose its energy. If we are using helium plus, we are removing proton or we are adding proton or we are removing electron? अमृता, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। अगर हम हीलियम प्लस लेंगे तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस पे जितने प्रोटॉन थे उतने ही रहेंगे ना, दो दो प्रोटॉन थे तो दो ही रहेंगे ना, यू हैव रिमूव्ड द इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, यस। चलो, so again I was saying this is the fourth point. तो बोर ने ये बोला कि सारे जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, केवल और केवल सर्टेन डिस्टेंस पे ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और उन सर्टेन डिस्टेंस पे जो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा दैट इज गोइंग टू बी nh/2 pi. Now this is equation 2. So from equation 1 and 2 we can write the calculations, different calculation. So let's say पहली है calculation of radius. How he has calculated the radii of orbits. So let's say we can say now we need to check here. देखो यहाँ पे क्या है, unknown क्या है, unknown क्या है, जैसे h/2 pi, this part is going to be known in different orbits, but m, v, r, this is all are unknown. M is known, v and r are unknown, दो unknown है, और यहाँ पे भी यही है, v and r are unknown. So what we have to do, k z e square, है ना, ये सब वैल्यू हमें पता होगी, हमें नहीं पता होगा that is velocity and r. So क्या करें, एक किसी को हटा दें, किसको हटाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी को हटाएंगे, राइट। अगर मैं इधर यहाँ पे लिखूं वेलोसिटी की वैल्यू, एक जगह से वेलोसिटी की वैल्यू लिखूं और दूसरे में डाल दूं, तो जैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो सकता था, आर को मैंने हटा दिया तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो सकता था ये के जेड ई स्क्वायर बाई एम, है ना, ये नीचे पहुंचेगा एम इंटू आर, करेक्ट है ना, v square equals to this is right from here. And now from here what we are going to do, यहाँ पे mvr लिखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर कर देंगे सबका, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोबारा लिख लेता हूँ वो जो बात मैंने यहाँ लिखी थी, so that you can recall easily. Z is k z e square by r square equals to mb square by r. So this was equation 1. So hence we can write v square equals to, we have to eliminate, अभी मैंने बताया दो unknown है, एक को एलिमिनेट करना है तो v स्क्वायर निकाल लिया, तो दैट इज गोइंग टू बी k z e स्क्वायर बाई m into r.
और मैंने फिर क्या किया, एंड दूसरी इक्वेशन लिख ली मैंने, mvr इक्वल्स टू nh/2 पाई, सो दैट इज m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 2. Now you can write this is also, that's equation 3. Now we can write from equation 1 and 3. So we can replace v square. What is the v square over here? kze square by m into r. So that is m square r square into kze square by m into r. है ना? That is equals to n square h square divided by 4 pi square. You can cut m say m and r say r की power. Now then it is going to be r into kze square m equals to n square h square divided by 4 pi square, or you can write r equals to n square h square divided by 4 pi square, और ये नीचे आ जाएगा तो k z square into m. So this is we can write. अच्छा n और n and z की वैल्यू चेंज हो सकती है ना, डिफरेंट अगर आपने डिफरेंट मेटल्स लिए या यूनि इलेक्ट्रॉनिक सीरीज लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, तो जेड वैल्यू चेंज होगी. हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, है ना, लिथियम 2 प्लस आयन के लिए 3, लाइक दैट. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू आगे ले आते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर k z k e स्क्वायर m इनटू n स्क्वायर बाई z. तो जब हम ये सब सारी वैल्यू लिखेंगे, जब इनकी वैल्यूज लिख लेंगे, है ना, हमें पता भी है h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, है ना, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सॉरी चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, एंड m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg में लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं यहाँ पे सब जगह. ओके, तो r की वैल्यू आती है यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ r which comes as this value 0.529 into n square by z angstrom. This is the value will come जब हम ये सारे के सारे जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू को अप्लाई कर देंगे. तो यू कैन राइट दिस पार्ट. m नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. यस, n का वैल्यू, हाँ अभी हम बता देंगे n की वैल्यू कैसे आएगी, क्या रहेगा. पूरा अमन, अगर पूरा फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया तो बेटर है, या फिर ये आप देख लो कि कैसे हमने एलिमिनेट किया है ना, एक ऑप्शन से, तो ये फॉर्मूला बार बार खुद बना पाओगे. फॉर्मूला याद भी नहीं करोगे तो भी चलेगा. कुछ हाइपोथेटिकल केसेस में, है ना, क्वेश्चन जहां थोड़े टफ करने होते हैं वहां पे दे आर गोइंग टू चेंज द मास और समथिंग, तो फिर क्या होगा, इंफॉर्मेशन सारी चेंज हो जाएगी इधर. सो बेटर इज रिमेंबर दिस इक्वेशन.
n is number of orbit. Yes, n is number of orbit. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. चलो इस वैल्यू को निकाल के देखते हैं, है ना. एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम. ठीक है, जस्ट अप्रोक्सीमेट भी निकाल लेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, हो गया ये. So let's say if we have to write R equals to, है ना, so h square is going to be 6.63 into 10 to the power minus 34 into 6.63 into 10 to the power minus 34. Z बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. Z इतनी आप परेशान मत हो. दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर. ठीक है, डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर. सो दिस इज 4 एंड पाई की वैल्यू दैट इज 3.14. अच्छा, 3.14 का होल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 आ जाता है. ठीक है, वी विल राइट लेटर. दैट इज 9 इंटू 10 टू पावर 9. ई की वैल्यू हो गई 2.56. मतलब ई का 1.6 का होल स्क्वायर एक साथ ही लिख ले रहा हूँ. 2.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 38 into 9.1 into 10 to the power minus 31. So you can see this part over here. So 10 to the power minus 38 and 10 to the power minus 31. So that is going to be 10 to the power minus 69, and this is going to cut here. So this is going to be 10 over here. And this 10 and this 10 is going to cut. ठीक है, तो बचा क्या R मतलब into n square by z है. So this is 6.63 divide by, right, ये अभी भी 10 to the power 9 बचा हुआ है. राइट, तो ये ऊपर जाएगा इंटू 10 to the power minus 9 हो गया. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज लेफ्ट. नीचे 4 9 2.56 एंड 9.1. सो दिस वैल्यू 6.6 का होल स्क्वायर लगभग कितना आएगा. 6.66 मान लो. 36 so 36 72 और 3 5 36 43. So this is going to be 43 point something, 43.56, right? And then you have to, let's say, solve here all these values. So इसको क्या लें. देखो ये ना एक और वैल्यू यहाँ पे, इसको पहले कैलकुलेट करते हैं. 36 और 36 इंटू 2.56 इंटू, अच्छा इसको चलो अभी अप्रोक्सीमेशन के लिए 10 मान लेते हैं, हटा देते हैं इसको. तो ये क्या होगा, 10 to the minus 10 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 10. तो अब ये वैल्यू कितनी है 36 और ये इसका 2.5. तो ये हो जाएगा 72 और ये अप्रोक्सीमेटली 86 के आसपास आ जाएगी. 86 87 के आसपास, राइट. 36 into 2.56. So this value would be coming around 0.5 something. ठीक है, तो ये इस तरह से आंसर आ रहा है. अब आप एग्जैक्ट वैल्यू डालोगे तो वो सेम आ जाएगा. तो 0.5 into 10 to the minus 10 that is 0.529. ये जो वैल्यू हमने निकाली है वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो. ये घर पे बैठ के कर लेना एक बार कैलकुलेटर लेके, है ना. तो एक्यूरेट वैल्यू आपको चेक हो जाएगी, क्रॉस चेक. ये जस्ट इसलिए लिखा था कि ये वैल्यू आई कैसे है. ठीक है, लेट्स मूव. यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट बतानी है. दैट इज व्हाट इज एन एंड जेड. कई लोगों ने पूछा तो लिख लेते हैं इसको. तो n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n इज
here n is number of orbits and z is atomic number. So let's say for hydrogen atom z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. अब अगर हमें लिखना हो रेडियाई तो radius of first orbit that is going to be what is going to be r1. फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया n की वैल्यू 1 हो गई. r1 की वैल्यू क्या आ गई that is 0.529 n square by z तो 1 square by 1 so that is 0.529 एंगस्ट्रॉम. और ये वैल्यू एक तरह से बोल दी जाती है that is also क्या called as r नॉट वैल्यू है ना. हाँ फाइनल वैल्यू याद रखना है 2.56 इंटू 10⁻⁻⁴ ई स्क्वायर है डायरेक्टली लिख दिया मैंने. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर करके लिख लो. r1 दिस इज रिटन एज r. फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है हेंस फॉर्मूला समटाइम इज रिटन एज r इक्वल्स टू r नॉट n स्क्वायर बाई z. You can write r in nth orbit is nothing but r naught n square by z. This is the value. Now for second orbit, let's say this is first orbit, है ना. For second orbit, so you can write r2 क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ पे है ना हाइड्रोजन एटम ही चल रहा है z की वैल्यू 1 है n की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा ये 4 स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर 4 so 4 r naught और you can write 4 into 0.529 एंगस्ट्रॉम. तो इस तरह से हम डिफरेंट रेडियस डिफरेंट ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हैं. हाँ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड mvr. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? Momentum is mv. So if it is rotating in let's say circular motion, so that is going to be mvr. Okay. Now remember this. Let's say if we are going to write for let's say for helium ion. Let's say second another example. Let's say for helium ion. What will happen? Let's say we have to write first orbit. Radius of first orbit r1 क्या हो जाएगा? So we will write r naught into n square. n की वैल्यू 1 है. z की वैल्यू क्या हो गई 2. So this is going to be r naught by 2. 0.529 by 2 एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे अगर हमें r2 निकालना है तो क्या लिखेंगे r naught into n square की वैल्यू. तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2. So this is 2 r naught. So we can write yes. बोलो भाई क्या है डाउट? हेलो सर. Just one Hello? second. फिर से बोलो. हेलो सर. सर लेकिन हाइड्रोजन में सेकंड ऑर्बिट होता ही नहीं है ना? सेकंड ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. सर तो फिर तो ये शायद वैलिड नहीं होगा ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब कोई ऑर्बिट में होता है उसके हिसाब से आगे अभी हम बताएंगे. एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं एक्चुअली वो बात आएगी आगे. ठीक है. ओके सर. चलो फिर मैं राइट नाउ आई एम मूविंग अहेड. ठीक है. जिसको भी डाउट है चैट में भेजो मुझे. राइट. सो दिस इज व्हाट इज कैलकुलेशन ऑफ रेडियस. आपको समझ में आ रहा है कि अगर मान लो मैं ऑर्बिट चेंज करूंगा तो रेडियस कैसे चेंज होगी और अगर मैं मान लो एलिमेंट चेंज कर दूंगा हाइड्रोजन से हीलियम या फिर मैं लिथियम पे चला जाऊंगा तो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो लेट्स से इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी.
देन द थ्योरम बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं, अब जितने आप बना लो, अगर कहीं पे लिखा है Na एक्सेट्रा लिखा था उसके आगे 10 प्लस तो ये चलेगा, है ना। लेड 81 प्लस, अब निकाल के तो देखो 81, आप निकाल ही नहीं पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक में चलेगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो। अगर हाइपोथेटिकली दे रखा होगा क्वेश्चन कि Na 10 प्लस, तो मान लेंगे, बनेगा नहीं है हालांकि। Yeah. So calculation of velocity. Again, we are having the same formula. Now in this case, we have to eliminate r. तो क्या था, आप लोग बताओ ये, चलो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन खुद बनाओ। आपको पता है k z e स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये मेरा एक फॉर्मूला था। और एक दूसरा है एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई। मुझे r को एलिमिनेट करना है, v के टर्म्स में फॉर्मूला निकालना, बताओ। ओके, सो देखो ये एक, अब मैं बता दे रहा हूँ, इसमें काफी अच्छा है, वेरी गुड, काफी लोगों ने निकाला है। लेट्स चेक, क्योंकि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वेरीफाई नहीं हो पाएगा। जेड बाई एन आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए जेड बाई एन। अब देख लो जेड बाई एन किसका आया है, मुझे तो दिख नहीं रहा किसी का। अब मैं एन, हाँ यस, एक दो लोगों का है, यस करेक्ट, हाँ राइट, ओके। सो नेक्स्ट लेट्स से व्हाट वी हैव टू डू, हमें आर को, पहले तो मैंने आर हटा ही दिया था, इधर से मैं आर की वैल्यू निकाल के लगा डाल दूं, है ना, तो मुझे v के टर्म में मिल जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स से ये मेरा था के जेड ई स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर, है ना, आर कट गया। और यहाँ से मैंने क्या किया, आर की वैल्यू क्या लिखी थी, आर की वैल्यू अगर मैं देखूंगा तो देन इट इज आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई एम वी। अब इसको, इस आर को यहाँ डाल दो, तो दैट इज के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई एन एच डिवाइड बाई 2 pi mv. So this is going to go up, which is nothing but mv square. बस हो जाएगा ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई एम वी डिवाइड बाई एन एच इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर। बी से बी कट, एम से एम कट, वी इक्वल्स टू आ गया 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइड बाई एच इंटू जेड बाई एन। तो जिन लोगों का ये आ गया है वेरी गुड, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, देख लो यहाँ क्या।
तो आपको ये समझ में आ गया, फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूले तुरंत बन जाएंगे। बस एक को एलिमिनेट करना है, जिसको एलिमिनेट करना है उससे एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकालो, दूसरे में डाल दो, बस। वेरी गुड, सब यही आंसर है बेटा, सबका यही है, जिन लोगों ने जिनका आंसर सही है वो उनका यही है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब अगर हम ये अगेन हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो अब यहाँ वैल्यू कितनी आती है आपको ये देखनी पड़ेगी, मैं बस डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 2.18 into 10 to the power 6 z by n, that is meter per second. So you can say velocity of electron is approximately, and approximately you can say 100 times 1 by 100 times velocity of light. This is, and a velocity of electron is approximately 1 by 100 times velocity of light. So this is velocity of electron is approximately c by 100, approximately, okay. 2.18 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। हाँ तो 10 to the power 6 है ना, तो तभी तो 100 किया, ये 100 इधर चला जाएगा तो 10 to the power 8 बन जाएगा। क्या लिख लो, 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाई 100, क्या रह जाएगा, 3 into 10 to the power 6। समझ में आया? आपको सॉल्व करना था सजल, कॉपी नहीं करना है, मैंने आपको टाइम दिया था। सुभोजीत ऑल, कौन से समझा क्या किया मैंने, खुद सॉल्व करो, कॉपी क्यों कर रहे हो? नहीं मॉलिक्यूल पे नहीं लगेगा बेटा, मॉलिक्यूल पे कैसे लग जाएगा? यूनि इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी मॉलिक्यूल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हमें एटम का ही पता नहीं है तो मॉलिक्यूल पे कैसे जाएंगे? करेक्ट ना समृद्धि? ओके चलो, ये तो हो गई वेलोसिटी। अब नेक्स्ट है, तो बोलते हैं एनर्जी। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी in of calculation of energy of electron in stationary orbit, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ओके, तो अब यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? तो अब एनर्जी जो होती है वो दो है इलेक्ट्रॉन के लिए, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी है ना। तो अगर मान लो हम यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियस किसी भी एक एन ऑर्बिट में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो भी है, that is it is moving, so it is having kinetic energy, and it is having interaction with the nucleus, so that's why it is having potential energy. Now what is potential energy? So potential energy is nothing but K into Q1 into Q2 by R, and with sign है ना, ये क्या है, with sign। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में आपको साइन रखना पड़ेगा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ लिखेंगे तो के, Q1 की वैल्यू क्या हो गई E, और Q2 की वैल्यू क्या हो गई ZE, सो दैट इज गोइंग टू बी E, दैट इज माइनस E
ZE, that is plus ZE, you know, divide by R. So this is going to be minus K ZE square by R. ये बात समझ में आ रही है? Potential energy with sign लिखना पड़ता है, तो charges we have to write with sign. तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन का प्लस पॉजिटिव चार्ज है, so that's why minus K ZE square by R. What is kinetic energy? Kinetic energy is half mv square. So from equation 1, K ZE square by R square equals to mv square by R. So this is going to cut. So hence mv square equals to K ZE square by R, and half mv square, that is nothing but kinetic energy, is equals to K ZE square by 2R, है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको काइनेटिक एनर्जी किस में मिल गई, यहाँ पे K ZE square by 2R. अब आप इस बात को लिख लो पहले. ठीक है, हो गया ये. तो अब क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगी, व्हाट इज गोइंग टू बी टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. हेंस total energy is going to be kinetic energy plus potential energy. If you are going to write, then this is K ZE square by 2R, and this is minus K ZE square by R. So it will come minus K ZE square by 2R. कैसे, आप K ZE square कॉमन ले लो, K ZE square by R कॉमन ले लो, 1/2 minus 1, so it's going to be minus 1/2 K ZE square by R. ठीक है, तो ये मैं रब कर दे रहा हूँ. ठीक है, आ गया आपका आंसर. नाउ इंपॉर्टेंट रिलेशन वी कैन अंडरस्टैंड हियर कि देखो K ZE square by 2R, दिस इज माइनस, लाइक लेट्स से दिस इज द वैल्यू, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं. सो ये माइनस हाफ रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी K ZE square by 2R, that is minus value. So we can understand that total energy is equals to kinetic energy, but in negative, let's say with negative sign. तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम है. दूसरा इंफॉर्मेशन वी कैन अंडरस्टैंड कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी है ना. ये देखो मैग्नीट्यूड में माइनस K ZE square by R है, यहाँ पे क्या है K ZE square by 2R. दैट्स व्हाई 1/2 आपने एक से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, वो हाफ बचा. So these are the relation we can write here. So hence पहली बात तो ये टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पहली बात. दूसरी बात, टोटल एनर्जी इज
half of potential energy. And तीसरी बात, kinetic energy is right minus half of potential energy. तो अगर कोई पूछेगा तो हम ये वैल्यू से एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू बता सकते हैं. फॉर्मूला हमें पता चल गया टोटल एनर्जी का. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी? दैट इज total energy formula is nothing but KZE square minus KZE square by 2R. And what is R? R क्या हो जाएगा? R is going to be, भी हमने पढ़ा है R की वैल्यू यहाँ पे क्या है? That is R naught n square by Z. What is the R value? R naught n square by Z. So we will substitute this part here. So that is total energy is going to be minus 2KZE square. Sorry, KZE square divided by 2 into R naught n square by Z. So this Z is going to go up. So that is minus KE square divided by 2R naught into Z square by n square. ठीक है. This is going to be the value. अगर आप इस वैल्यू को लिखोगे तो इससे आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी. टोटल एनर्जी विल कम, दैट इज minus 13.6 Z square by n square electron volt, or you can say 13.6 into 96, right? That is going to be 1312 kilojoule per mole. सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये वैल्यू आ रही है, पहली वैल्यू तो यही है, पहले ये लिख लेते हैं 13.6 Z square by n square in electron volt, और you can say total energy is equals to minus 13.6 Z square by n square into 96 kilojoule per mole. So that is 1312 kilojoule per into Z square by n square किलोजूल पर. ठीक है. अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से. किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही हो? ये Z है ना, इसको 2 मत समझ लेना. Going up, so Z square by n square. अब जल्दी से एक बार आप लोग ये पूरी जितनी भी हमने अभी तक वैल्यू लिखाई है इनको एक बार जल्दी से रिवाइज करो, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा इसमें. नेगेटिव साइन लगा हुआ. हाँ यस, ये नेगेटिव साइन होगा बेटा, सब जगह आएगा ये. चलो चले आगे. ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट बेटा, है ना. 96 दिस इज अप्रोक्सीमेट, थोड़ी सी ज्यादा होती है 96, तो एग्जैक्टली 1312 है.
वेरी गुड अभिनव, यू कैलकुलेटेड वेरी गुड, बट ये आएगा 1312, ये रिमेंबर। अरे ये रिमेंबर नहीं रखने हैं भाई, इनकी बस रिजल्ट याद रखने हैं। R इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, ये रिलेशन याद रखना है। हाँ मैं ये बताना भूल गया शायद, आप इसको इस तरह से याद रखो, बहुत आसान है। देखो ठीक है, और दो तीन रिलेशन और हैं वो भी बता दूंगा मैं। तो पहले ये समझो है ना, याद कैसे करना है। रेडियस है दैट इज, तो समरी ये हो गया, लेकिन मुझे कुछ और भी बताना था, थोड़ी देर में बताता हूँ, थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ यहाँ पे। समरी, so that is first is r equals to r naught n square by z, तो ये रिलेशन याद रखना है ना, यहाँ पे n square by z मेनली, एंड v इक्वल्स टू v नॉट, अगर ऐसे ही हम 2.186 इंटू 10⁻⁶ को हम जो है v नॉट लिख लें तो ये हो जाएगा इंटू z बाई n। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि काइनेटिक टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, राइट, वैल्यू में है ना, साइन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, वैल्यू में। और काइनेटिक एनर्जी होता है v स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको v स्क्वायर कर दोगे तो टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या आ जाएगा, ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको जेड बाई एन से जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर समझ में आ रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। बस ऐसे याद रख लो, दो वैल्यू याद रखनी है बस, आर की वैल्यू एन स्क्वायर बाई जेड, वेलोसिटी जेड बाई एन, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब ये वैल्यू मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ लिख ली, अब ये समरी है, इधर लिख लेते हैं यहाँ पे। इस वैल्यू को टोटल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई से। ई क्या हो जाएगा, -13.6 को लिख लिया ई नॉट, पहले तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, वेयर ई नॉट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली बात। दूसरी बात, ऑन इंक्रीजिंग एन, है ना, ऑन इंक्रीजिंग एन क्या होगा, ई इंक्रीजेस। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस साइन में है, तो अगर मान लो -13.6 लिखा है डिवाइड बाई, अगर मैंने इसमें एन की वैल्यू 1 डाली तो 13.6 डिवाइड बाई 1 ही आएगा। अगर मैंने एन की वैल्यू 2 डाल दी तो क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइड बाई 4, सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी अराउंड -3, है ना, दिस इज गोइंग टू बी 3.6, नहीं 3.4, so it will come 3.4 electron volt. So between -13.6 and -3.4, which one is bigger, which one is bigger, -3.4 है ना, -5 और -2 में कौन सा बड़ा है, -2 is bigger। ठीक है, which one is bigger, -2 is bigger, so we are writing with sign, we have to remember the sign importance। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम पहले, for hydrogen atom z equals to 1, energy of first orbit so that is E equals to E naught 1 by 1 का whole square, so that is -13.6 electron,
and what is going to be energy of second orbit. So E2 is going to be, this is E1, E2 is going to be E naught. Z की वैल्यू 1 ही है, n की वैल्यू 4 हो गई, so sorry n की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 का स्क्वायर 4, so this is minus 3.4 electron. So hence you can say, right, hence as n is increasing, energy is increasing, and as n is, sorry, as z is increasing, energy is decreasing. ये रिलेशन है, ये भी लिख लो आप. Z की वैल्यू डालेंगे तो ये नेगेटिव में और नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी. सो फॉर लेट्स से हीलियम आयन के लिए यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6 into 4, so that is going to be -54.4 electron volt. That is going to be more negative. More negative means less. हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर. Good सर morning. अभी आपने यहाँ लिखा है ना कि जब n इंक्रीज होता है तो E डिक्रीज होना चाहिए ना. अभी मैंने बताया था ना कि -2 और -5 में कौन बड़ा होता है, -2. फिर कौन बड़ा होगा इन ओके, दोनों में. सो ओके, हाँ, ठीक है. ओके ओके, थैंक यू सर. और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक और बात लिख सकते थे. यहाँ पे थोड़ा सा ये समरी है, इसलिए मेरे पास जगह नहीं है. समरी से पहले हम एक और बात लिख सकते हैं कि फिर से यही बात जो मैंने यहाँ लिखी है ना, आप यहाँ पे, मेरे पास जगह नहीं है, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, जाएगा. तो एज n इज इंक्रीजिंग, है ना, n की वैल्यू बढ़ रही है, एनर्जी घट रही है, दैट इज टोटल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी बिकॉज इट इज नेगेटिव, बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एन एनर्जी बढ़ रही है ना, सॉरी बढ़ रही है एनर्जी. जो साइन है वो यहाँ पे यही रहेगा, as n is increasing, energy is increasing, potential energy is increasing and kinetic energy is decreasing, उल्टा. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता जा रहा है, बट निगेटिव में मैग्नीट्यूड कम हो रहा है इसलिए बढ़ रहा है, नेगेटिव में मैग्नीट्यूड कम हो रहा है इसलिए बढ़ रहा है, पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड कम हो रहा है मतलब घट रहा है. एक और बात आती है नेक्स्ट, इसमें थोड़ा और समरी में, मान लो मुझे निकालना हो रिलेशन विद टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू स्पेंड टू कंप्लीट वन साइकिल. ठीक है, सो दैट इज टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी, राइट, डिस्टेंस traveled in one cycle divide by speed, है ना, यही होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड.
right? So now what is distance? Distance is in one cycle 2 pi r, speed is v. तो अगर मुझे टाइम किसी nth पीरियड में चाहिए है ना, nth मान लो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी Tn is going to be 2 pi Rn divided by Vn. So ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो. सो हमें बस रिलेशन देखना है प्रोपोर्शनलिटी से. आर की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, है ना. प्रोपोर्शनलिटी इंपॉर्टेंट है. तो T इज प्रोपोर्शनल टू आर की वैल्यू क्या दी? 2 पाई, या फिर एग्जैक्टली लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, एंड दैट इज वी नॉट जेड बाई एन. तो क्या होगा ये? दैट इज 2 पाई आर नॉट बाई वी नॉट इनटू, ये एन सबसे ऊपर चला जाएगा तो एन क्यू बाई जेड स्क्वायर. ये रिलेशन समझ में आया टाइम का? nth orbit this is going to be 2 pi r naught by v naught n q by z square. If you know the time period, then can you calculate frequency? Frequency we can calculate. Frequency of another part. Frequency of electron in a stationary orbit. So that is frequency, that is f is 1 upon t. तो ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा? That is v naught divided by 2 pi r naught z square by n cube. ये फ्रीक्वेंसी आ गया. फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे z स्क्वायर बाई एन क्यू, एंड टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर. फिर से समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट ये है ना. टाइम पीरियड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन साइकिल डिवाइड बाय स्पीड, 2 पाई आर बाई वी. अब आर की वैल्यू लिख लो. व्हाट इज गोइंग टू बी आर इन दैट ऑर्बिट? दैट इज आर एन वी एन. आर एन की वैल्यू क्या है? आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड. वी की वैल्यू क्या है? वी नॉट बाई वी नॉट इनटू जेड बाई एन. सो दैट्स इट, योर आंसर. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जस्ट अपोजिट ऑफ टाइम पीरियड, सो यू कैन रिमेंबर दिस वैल्यू. अब ये कोई भी रिलेशन पूछा जा सकता है. किसी ने बोला बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम. तो आप v की वैल्यू लिख लो z बाई एन, r की वैल्यू लिख लो एन स्क्वायर बाई जेड. तो ये क्या हो जाएगा? अभी आप देखो, दिस इज गोइंग टू कट. तो ये किसके मल्टीपल है? n के मल्टीपल है. दैट इज रिटन एज nh by 2 पाई. आपने दिखा भी है. ये तो हो गई समरी. तो अगर मैं किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एलिमेंट के लिए पूछूं तो ये सब आप रेशियो बता दोगे. तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं. मैं क्या कहना चाहता हूँ? फाइंड रेडियस रेशियो ऑफ third orbit of helium plus ion to second orbit of lithium 2 plus ion. बताओ भाई रेडियस का रेशियो. दिस इज थर्ड ऑर्बिट ऑफ helium plus ion to second orbit of lithium 2 plus ion.
Yes, Ekansh, I will share on this group and every time I am sharing. So you don't ask कि इस बार भेज दूंगा क्या? हर बार भेज रहा हूँ ना? चलो तुम्हारी अटेंडेंस ले लेते हैं. Okay, I got some answer. Let's see. तो मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ अभी. देखो कि कहाँ किसने क्या गलती की है. यस, वेरी गुड. जिन लोगों के आंसर आए हैं देखते हैं. अब यहाँ पे देखो, फाइंड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम. एन की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 2. तो ये लिखेंगे हम पहले. सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन. So that is going to be R naught. N की वैल्यू क्या हो गई? 3. 3 का स्क्वायर बाई Z की वैल्यू क्या हो गई? 2. रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन. सो दैट इज R naught. N की वैल्यू 2. सो दैट इज 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3. इन दोनों का रेशियो देखना है. तो बस रेडियस ऑफ हीलियम प्लस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ लिथियम 2 प्लस, दैट इज R naught कट जाएगा वैसे भी. सो दिस इज गोइंग टू बी 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9. 9 बाई 4 डिवाइड बाई 4 by 3. So this is going to go up and this is going to go here. फिर से देख लेते हैं हमने कुछ यहाँ. सॉरी 2 है, सॉरी नॉट 2, 4. 9 by 2. So 9 by 2 divided by 4 by 3. So that is going to go 27 by 8. So this is the ratio. जिनका नहीं आया उन्होंने मेरी तरह यहाँ पे कुछ गलती करी होगी. ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोगों से कर हो जाएंगे मेरे हिसाब से सबके. जिनके जिनके नहीं हुए, जिनसे नहीं आ रहे हैं आंसर, वो देख लो कि क्यों नहीं आए. 81:4 कैसा है सौरभ तुम्हारा? तो बस ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है. राइट, आपको बस इसी तरह से करना है. Another, let's say example, है ना, find energy ratio, सेम है ना, of electron of orbits of, sorry, third orbit of helium plus ion to second orbit of lithium 2 plus ion. अब ये सबका सही होना चाहिए.
यस, हीलियम प्लस का मतलब है केवल इतना यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसलिए हीलियम प्लस लिख रहे हैं। हमें तो एटॉमिक नंबर लेना है। जेड की वैल्यू तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में हीलियम प्लस का कोई मतलब नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल वी वांट यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, so that's why we have written lithium 2 plus helium plus. आ गया सबका आंसर? अनुष्का गलत है शायद, यस। किसी का 16/81 आ रहा है, किसी का 81/16 आ रहा है। अगेन आई वुड से किसी ने गलत किया है यहाँ पे। दिस बाय दिस करना है। एनर्जी थर्ड of helium plus ion, that is going to be E naught and Z square by N square। ठीक है, हो सकता है उल्टा आपने कर दिया हो, ठीक है, आपने N square by Z square कर दिया हो, तो इसीलिए याद रखना है V is proportional to Z by N, V is proportional to Z by N, V square is proportional to Z square by N square, so N square by Z square मत कर देना। तो anyway, kinetic energy that is E3 is going to be E naught Z square by N square, so Z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और n की वैल्यू कितनी है 3, सो 4/9 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ETO ऑफ लिथियम 2 प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी E नॉट, राइट, दैट इज सेकेंड ऑर्बिट है और ये 3 है, तो ये 9/4, बस हो गया रिलेशन। E3 ऑफ हीलियम प्लस डिवाइड बाई E2 ऑफ लिथियम 2 प्लस इज इक्वल्स टू E नॉट कट गया, सो दिस इज 4/9 डिवाइड बाई 9/4, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। सो आंसर आ रहा है हमारा 16/81। ठीक है, बहुत लोगों का आया है, जिनका 1:1 आया उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है डिवाइड करने की जगह। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चलो, अब आप लोगों को होमवर्क आप कर सकते हो, कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 1 मिनट। लेट्स सी योर मॉड्यूल। ओके, सो आप लोगों से अब कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। बीच बीच में है, अभी शायद नहीं हो पाएंगे पूरे। मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, अभी थोड़ा और मॉडल बचा हुआ है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आप क्वेश्चन कर लो, ठीक है। सो दैट इज 50।
तीन चार ही क्वेश्चन है, 57, 58, 59, 60। नहीं अभी ये भी नहीं हो पाएंगे, इसमें डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है। ली बेटा अभी कुछ नहीं हो पाएगा, आप लोग ट्राई करना, कुछ पुराने क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी कोई होमवर्क नहीं, रिवाइज कर लेना। ओके, आपका जो पेपर आ रहा है उसका आप रिवाइज कर लो, दैट्स इट, नो होमवर्क। हाँ जिसको डाउट है वो जल्दी से पूछ लो, ठीक है, बाकी लोग जाओ। हाँ बोलो बेटा, कहाँ था आपका डाउट? यस एक बार मुझे हाई लिखो, कहाँ हो? एक्चुअली मुझे दिख नहीं रहा है, क्या पूछा था तुमने डाउट?